Hello students, welcome back in your English class. As you know, our 10 series is going on. In this process, we will continue today with past continuous tense. आज हम past continuous tense के बारे में पढ़ेंगे. This is also called past progressive tense. What is past continuous tense? It is used to express an ongoing continued action till a certain time in past. It means ये एक जारी रहने वाले काम के बारे में बताता है जो कि पास्ट में हो रहा था एक निश्चित समय तक. These actions are usually no longer happening at the time the sentence is being said or written. It means जब सेंटेंस कहा जा रहा है या लिखा जा रहा है उस समय वो एक्शन नहीं हो रहा है. Now, uses of past continuous या past progressive tense. First, used to denote an action going on at some time in the past before another action began. इट मीन्स इसका यूज़ किया जाता है एक ऐसे एक्शन को बताने के लिए जो पास्ट में हो रहा था किसी दूसरे एक्शन के शुरू होने से पहले. माई ब्रदर वॉज वॉचिंग द मैच लास्ट इवनिंग. मेरा जो भाई है वो पिछली इवनिंग को मैच देख रहा था. इट मीन्स ऑन गोइंग एक्शन था, उस समय पर देख रहा था, अब वो काम नहीं हो रहा है. Used to describe situation or an action which had started at some time but had not ended at the time we are referring to. ऐसे actions को या ऐसे situation को describe करने के लिए भी past continuous tense का use किया जाता है जिसमें जो वर्क है वो एंड शुरू तो हो गया है बट वो एंड नहीं हुआ है जैसा कि टाइम रेफर किया गया था उस समय पर. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज बेकिंग कुकीज व्हेन द चिल्ड्रन कम बैक. जब बच्चे वापस आए तब तक उसका जो काम था वो नहीं हुआ था, वो वही काम कर रही थी. यूज्ड विद ऑलवेज कंटिन्यूअली फॉर परसिस्टेंट हैबिट्स इन द पास्ट. जो हमारी पास्ट हैबिट्स होती हैं उनमें या ऑलवेज और कंटिन्यू जो वर्क होते हैं उनके लिए भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं. इन पास्ट में जब बताया जाता है शी वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट अदर्स. वो हमेशा दूसरों के बारे में शिकायत करती रहती थी. इट मीन्स वो ऑलवेज पास्ट की हैबिट थी उसकी. नाउ फॉर्मूलाज ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. फर्स्ट इज अफर्मेटिव सेंटेंस. फर्स्ट वी विल पुट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वी विल यूज was and were as a helping verb. यहाँ हम was और were का यूज करेंगे. Then verbs first form and ing form. With verbs first form we add ing. Then object and full stop. Was is used with singular subject and I, and were is used with plural subjects. Let's see some examples. She was eating an ice cream. वो एक आइसक्रीम खा रही थी. नॉट नाउ, अभी नहीं खा रही है, पास्ट में. आई वॉज ड्राइविंग अ कार. मैं एक कार चला रहा था. ही वॉज लर्निंग इंग्लिश. वो इंग्लिश सीख रहा था. दे वर नॉट टीचिंग. इट वॉज ड्रिजलिंग आउटसाइड. डॉग्स वर बार्किंग इन द स्ट्रीट एट नाइट. द मॉब वॉज बीटिंग अ thief. Now, the formula of negative sentence. As you know very well that when we make negative sentence, we put not after the helping verb in all tenses. जब हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट रख देते हैं, नॉट लगा देते हैं टू मेक अ नेगेटिव सेंटेंस. So here we again do like this. Subject, after that was and were, then put not. Then verbs first form plus ing, object and full stop. She was not eating an ice cream. I was not driving a car. He was not learning English. They were not teaching. It was not drizzling outside. Dogs were barking in the street at night. The mob was not beating a thief.
Now we have to make interrogative sentence. When we have to make interrogative sentence, we put was and were. It means we put helping verb at the starting of the sentence. After that subject, then first form of the verb and ing, then object and question mark. Because these are interrogative, we put a interrogative sign here. Now let's see some examples of interrogative sentence. Was she eating an ice cream? Was I driving a car? Was I learning English? Were they teaching? Was it drizzling outside? Were dogs barking in the street at night? Was the mob beating a thief? Now, we have to remember some things in our mind when we use past continuous tense. Past continuous tense is often combined with past simple tense. जो past continuous tense है वो अक्सर जो simple past tense होता है उसके साथ में जुड़ा हुआ होता है, उसके साथ में यूज किया जाता है. For example, while we were sitting at the stadium, the rain began. Here we can see here is past continuous tense and here is simple past tense. Another example, while we were playing tennis, it started to rain. Again we can see here is the past continuous tense, were playing, and it started to rain. Started is the second form that we use in simple past tense. So this is the combination of past continuous tense and simple past tense. While she was sleeping, someone took her phone. जब वह सो रही थी किसी ने उसका फोन ले लिया. Again we can see here is past continuous tense and here is simple past tense. Now another situation, past continuous tense can be used when describing an unfinished action that was interpreted by another action. Past continuous tense का यूज तब भी किया जाता है जब हम किसी अनफिनिश्ड जो काम पूरा नहीं हुआ है उसको डिस्क्राइब करते हैं, जब दूसरा एक्शन उसके बाद उसके बीच में आ जाता है, उससे इंटरप्रेट करता है. द एक्शन इन द पास्ट स्टार्टेड बिफोर द अदर एक्शन एंड कंटिन्यू आफ्टर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. जो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था, जो एक्शन है वो पास्ट में पहले शुरू हुआ था दूसरे एक्शन से और अभी कंटिन्यू है एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, कुछ समय के लिए वो कंटिन्यू है. सम एग्जाम्पल्स, आई वॉज मेकिंग डिनर व्हेन ही अराइव्ड एट माई होम. मैं डिनर बना रहा था जब वो मेरे घर आया. वी कैन सी हियर आर टू एक्शंस. When I helped in the kitchen, जब मैं किचन में हेल्प कर रही थी, माया came, माया आई. He met Mary when he walked through the park. वह मैरी से मिला जब वो पार्क के अंदर घूम रहा था. It means here are two actions. एक एक्शन जो है वो कंप्लीट होने से पहले ही दूसरा एक्शन हो गया है जो कुछ समय तक जारी था, उसी दौरान ये काम हुआ है. Now, past continuous tense can be used to show that two actions were going on at the same time in the past. Past continuous tense का use past में जो दो एक्शन साथ साथ होते हैं उनको शो करने के लिए भी यूज किया जाता है. Neither of these actions are happening in the present. कोई सा भी एक्शन, जो दो एक्शन हम शो करेंगे उनमें से कोई भी एक्शन प्रेजेंट में नहीं होता है, दोनों ही एक्शन पास्ट में होते हैं और साथ साथ होते हैं. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. शी वॉज प्लेइंग द पियानो वाइल एंड वॉज सिंगिंग ऑन स्टेज. वह पियानो बजा रही थी जब एंड स्टेज पर गा रही थी. दोनों वर्क साथ हो रहे हैं, दोनों एक्शंस साथ में हो रहे हैं. वी वर सिटिंग आउटसाइड वाइल द प्लेन्स वर फ्लाइंग ओवरहेड. हम बाहर बैठे हुए थे जबकि जो प्लेन्स है वो हमारे सर के ऊपर उड़ रहे थे. दोनों एक्शन साथ में हो रहे हैं. नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों यूज किया जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस.
The past continuous tense is important since it is used when mentioning actions or events that happened at a specific time in the past and which are generally no longer are happening now. ये जो कॉन्टिन्यूस टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, वो ऐसे एक्शंस को बताने के लिए यूज़ किया जाता है जो एक स्पेसिफिक टाइम में पास्ट में हुए थे, अब वो एक्शन नहीं हो रहे हैं और ना ही फ्यूचर में हो सकते हैं। उन एक्शंस पर वो एक्शंस हो चुके हैं, अब रिपीट नहीं होंगी। दिस टेंस कैन बी यूज्ड alone or can be combined with past simple tense to show that an action or event happened in the middle of another action. ये जो टेंस होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसे अकेले यूज किया जाता है या फिर इसको कंबाइन किया जाता है सिंपल पास्ट टेंस के साथ में एक्शंस को या इवेंट्स को जो हो रहे थे उन्हें शो करने के लिए। जैसा कि हमने पहले देखा था, जब दो एक्शन साथ में होते हैं तब हम यूज़ करते हैं एक में, दोनों को बताने के लिए कि दोनों एक्शन साथ में हुए हैं पास्ट में। साथ ही कुछ ऐसे एक्शंस को शो करने के लिए भी किया जाता है जिसमें एक एक्शन पास्ट में हुआ था, पहले शुरू हो गया था, वो खत्म हुआ, उससे पहले ही दूसरा एक्शन भी शुरू हो गया है। तो इस तरीके के जो एक्शन कंबाइन किए जाते हैं, सेंटेंस कंबाइन किए जाते हैं, उनमें भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। और जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस के साथ में कंबाइन करता है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। यू हैव टू राइट ऑल दीज थिंग्स इन योर नोटबुक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।